ابھی 6 زبور پڑھا گیا میرے دل میں، جب بہن شوبنا واپس اوپر آئی تو اس میں ایک آیت لکھی ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ ہمیں خداوند نے زندگی دی، ہمیں خداوند نے سلامتی دی۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی چہرے جو ہیں وہ اداس بیٹھے ہیں۔ کیوں وہ اداس ہیں آپ؟ کیا یسوع آپ کے اندر نہیں ہے؟ زوردار ہالےلویا کرے۔ ہلیلویا ہالےلویا۔ ہلیلویا۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور نیا سال جو ہم نے شروع کیا ہے، اور پرانے سال کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے، اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا، اس نے ہمیں نئی زندگی دی، اس نے ہمیں نیا سال دیا، اس نے ہمارے بچوں کو نیا سال دیا۔ یہ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ آپ سب لوگوں کو نئے سال میں انعامات ملے، مجھے بھی ایک انعام ملا، میں اس کا چرچا کروں گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھے جو نیا سال جو خداوند نے انعام دیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو کیا انعامات ملے تھے؟ مجھے جو ملا میں اس کی چرچا کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ بات ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا انعام جو ہے وہ خدا نے ہمیں ایک نیا سال دیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، وہ نیا سال نہیں دیکھ سکے، اور ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر، لیکن پلیز میسج کے ٹائم پہ اپنے فون بند کر دیجئے، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور گھومنا پھرنا بھی بند کر دیجئے۔ تھوڑا سا وقت ہے، یہ خداوند کے کلام کو سنیں۔ جب ہم پھرتے ہیں تو میری بھی ٹینشن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، میں بھی ادھر ادھر دیکھنا ان کو شروع کر دیتا ہوں۔ سو پلیز ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، فون بھی بند، پھرنا گھومنا بھی بند۔ اس کلام کے تعلق سے جب آپ کو اگر کوئی بات میں کوئی بات اور پوچھنی ہے تو پاسٹر صاحب سے یا مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم نے اس نئے سال کو آغاز کیا ہے۔ آج دوسرا ویک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی مرضی آج کے سال کے اندر ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر کوئی مجھے بتا سکے کہ واٹ از دا میننگ آف نیو ایئر، کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے نیا سال؟ دنیا میں بہت سارے لوگ نیا سال مناتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، لیکن خداوند کے لوگ دنیاوی لوگوں سے جو نیا سال شروع کرتے ہیں وہ فرق ہوتا ہے۔ نیا سال اس لیے شروع کیا جاتا ہے کہ خداوند کی شکر گزاری کی جائے کہ گزرا سال ہماری زندگی میں ہوا، اور لاسٹ ویک جو گزرے سال کا ہوتا ہے اور یہ ویک جو ہوتا ہے، اس میں ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ خداوند نے اب میں نے کیا کرنا ہے۔ نئے سال کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی پرانی انسانیت کو دفن کرنا ہے، اور نئی انسانیت جو ہے، نیا سال جو ہے، میں نے اپنے خداوند میں اس کو کیسے شروع کرنا ہے۔ اور نیا سال جو ہے ایک تمار کی طرح ہوتا ہے۔ تمار سمجھتے آپ؟ ایک اس مشیل نے کہا تمار کا مجید نہیں پتا۔ بیٹا پرانے وقت میں، آج ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے اس طرح سے ہے، پر پرانے وقت میں تمار ہوتا تھا اس طرح سے، تو اس کو ایسے جب ایسے کرتے تھے بند ہوتا تھا، ایسے کرتے کھولتے تھے تو اس میں سے پڑھتے تھے۔ تو یہ نیا سال ہے، یہ ایک تمار کی طرح ہے۔ آپ نے اس کو کیسے شروع کرنا ہے، جیسے جیسے کھولنا ہے ویسے ویسے آپ کی زندگی کے آگے کے دن خدا آپ کو دکھاتا رہے گا۔
लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसके ऊपर आपने हर रोज़ उस तुम्हार के ऊपर लिखना क्या है। क्या खुदा के कलाम की बातें लिखनी है या अपनी ज़ुबान से अपने उस तुम्हार पे जो कुछ लिखना है वही कुछ होगा। क्योंकि अभी हम इसको पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 उसकी 11 वर्ष, उसमें लिखा है यिर्मयाह 29 वर्ष 11। देखिए खुदावन के जो ख्यालात हैं हमारे लिए वो इस नए साल में बल्कि हमेशा हर रोज भी ये रहते हैं। यिर्मयाह 29 11। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। हालेलुया। अब खुदावंद के ख्यालात जो मेरे लिए और आपके लिए हैं वो क्या है? बोले आप। अभी पढ़ा है क्या है खुदावंद के ख्यालात? बुराई के ख्यालात, बुराई के नहीं। लेकिन अगर हम इस तबार पे खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो इस तबार पे हमारे लिए बुराई नहीं होती बल्कि बुरी चीजें आ जाती हैं। और इस बात को हमने देखना है कि नया साल मैंने शुरू किस तरह से किया है। अगर मैंने अपनी आदतों को, अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपनी हर चीज को छोड़ा नहीं है इस नए साल में, तो मेरे लिए ये नया साल नहीं है, मेरे लिए वही पुराना साल है। क्योंकि मेरी आदतें, मेरी बातें दूर नहीं हुई। खुदा के कलाम में हम देखेंगे कि ये जो अक्ल है ये एक करप्ट अक्ल है। ये अक्ल जो है वो शैतान की तरफ से मेरे में और आप में, जब तक हम अपने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दिंदा नहीं मानते। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, आप निकालें, क्योंकि जब तक हमें मसीह की अक्ल नहीं होती हम खुदा के मुताबिक इस जिंदगी को पूरा नहीं करते और नहीं चला सकते। जेनेसिस 3:6 उसमें आप देखेंगे कि वो अक्ल जो है वो शैतान से कैसे हुई। आप हैरान होंगे कि मैंने कहा कि ये जो अक्ल हम में है ये इब्लीस की तरफ से अक्ल आती है। पढ़िए जी। और उसने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। बस शैतान ने खुदा के उस मंसूबे को, हवा के अंदर उस अक्ल को जो शैतान की तरफ से उसने प्लानिंग की थी हवा में डाल रहा था, ताकि अब जो इंसान है वो मेरी अक्ल से दुनिया में काम करे। क्योंकि अगर हम पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी आखिरी 2 आयत पढ़ेंगे कि हम में क्या है, अभी मसीह की अक्ल है, वो अक्ल नहीं है। क्योंकि हमने अभी खुदावंद को कबूल किया है। जब हमने खुदावंद को कबूल किया है तो हमें मसीह की अक्ल आती है और फिर हम ये जिंदगी नए साल में खुदावंद की मर्जी के मुताबिक गुजार सकते हैं, बशर्ते के हम उसके हकाम को, उसके सारे कवानीन को अगर अब फॉलो करते हैं तो। हाँ जी। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हम में किसकी अक्ल है जी? मसीह की अक्ल। तो पहले किसकी थी वो? शैतान की। तो मसीह के वसीला से, मैं बड़ी आस्था से बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़ी जल्दी बोलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आज मैं आस्ता बोलूँ। हम में अब किसकी अक्ल है? मसीह की अक्ल। तो अगर आप देख लें रोमियो का खात उसका 2 बाब उसकी 2 आयत पे लिखा है, रोमियो का खात उसका 2 बाब उसकी 2 आयत, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ
ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी, नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। जब तक हम में खुदा की अक्ल नहीं आती, हम खुदा की मर्जी को नहीं जान पाते, हम उसके मंसूबों को नहीं जान पाते। क्योंकि जब भाई ने पढ़ा वो पहला करन के 2 बाब की, उसमें लिखा है कि रूहानी आदमी सबको परख लेता है और खुद किसी से परखा नहीं जाता, और हम में मसीह की अक्ल है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए हमारी जो जिंदगी में तरक्कियां रुक जाती हैं, वो क्यों रुक जाती हैं, मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा। अगर हम इस अक्ल के बारे में कुछ देखेंगे तो इफ्सियों का खत है, और उसमें भी लिखा है कि अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। हवाला। इफ्सियों का खत है, उसका 4 बाब है मेरे ख्याल, उसके 4 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, आप पढ़ दीजिए ताकि जी। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हम पाक ही नहीं हो सकते जब तक हमें खुदा की अक्ल नहीं होती। हम खुदा को जब अपना शख्सी निजातिंदा नहीं मानते, हम उसके मंसूबों को नहीं जान सकते, हम उसकी अक्ल को अपने अंदर जब लेते हैं तो फिर हम खुदा के लायक बनते जाते हैं, फिर हमारा नया साल शुरू होता है। हालेलुया। अगर हमारी ज़िंदगी में वही पुरानी बातें हैं, वही ढीठपन है, वही गुस्सा है, आंखों में पकीज़गी नहीं, मुंह में पकीज़गी नहीं, हम बैक बाइटिंग करते रहते हैं, तो खुदा की अक्ल हम में नहीं है। हम आज भी उसी इब्लीसी करप्ट अक्ल के अंदर चलते रहते हैं। और ये क्यों करते हैं? इसके लिए हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा जो ख़तरनाक काम होता है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारी ज़ुबान करवाती है। ज़ुबान से बेशुमार घरों ने बर्बाद हो गए हैं, हुए हैं, रिश्ते खराब हो गए ज़ुबान से, और उन रिश्तों की को ठीक करने के लिए हमें अपनी ज़ुबान को ठीक करना है। अगर आप पढ़ें याकूब का खत, ये याकूब का जो खत है ये प्रैक्टिकल खत है, वो प्रैक्टिकल बातें बताता है। उसका 3 बाब है, याकूब का खत, इब्रानियों के बाद होगा, इब्रानियों के बाद याकूब का खत आता है, हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पहली से हम पढ़ेंगे इसको, बड़ी 12 आयत तक पढ़ेंगे, आप आस्ता आस्ता इसको पढ़ना। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने। हालेलुया। एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं वो कह रहा कि उस्ताद ना हो, वो कहता है कि बहुत से उस्ताद ना बने। क्यों? कि उस्ताद जो है वो जो पहले अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते, उस अक्ल के सुपुर्द नहीं करते, तो जब वो उस्ताद बन जाते हैं, बाइबल उठाते हैं, गलत तालीम देंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। आगे पढ़े। आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सजा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के साथ अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्जी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अदा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं,
मगर जुबान की कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्योंकि क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है मेरे भाइयों? क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। हालेलुया। देखो इतनी खूबसूरत खुदा का बंदा यक्कूब बुजुर्ग कहता है, और बड़ी डिटेल से इसको अगर आप घर में जाके पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को, और यहाँ लिखा कि ज़ुबान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाज़ों से उसने तशबीह दी है। एक पतवार होती है जिससे वो डायरेक्शन उसकी चेंज होते हैं, उसको पतवार कहते हैं। और वो कहता है कि जहाज़ भी एक छोटी सी पतवार से घुमाए जाते हैं। तो ये बदन जो है ये भी ज़ुबान के काबू में है। ज़ुबान से आप भलाइयाँ ले सकते हैं, ज़ुबान से आप खुदा में तरक्की कर सकते हैं, ज़ुबान से आप खुदा से दूर भी हो सकते हैं। क्योंकि आगे चल के हम इस कलाम में देखेंगे कि ज़ुबान करती क्या है। क्यों हम इस बात में लिखा है कि क्यों ज़ुबान का ही जिक्र है? क्योंकि यहूदी कल्चर में जो चीज़ इस्तेमाल होती थी उसी का नाम लिया जाता था, हाथों के तलक से, पाँव के तलक से, लेकिन आती तो सारी चीज़ें दिल से हैं, लेकिन जिक्र उन चीज़ का होता है जो इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे भी ये इस्तेमाल हुई है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि ज़ुबान करती क्या है। फेवर नहीं देती अगर गलत इस्तेमाल हो जाए। अगर आपने फेवर लेनी है, अगर हमने एक दूसरे से प्यार से बातें करनी है तो हमें फेवर मिलेगी, और अगर हम नकम्मी बातें करेंगे कोई फेवर नहीं देगा। अगर हम एक दूसरे से बैठकर बैक बाइटिंग करेंगे वो बात दूसरों तक जाएगी और आपकी भी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आपने बात की है, मैंने की है। तो इसलिए ज़ुबान के तल्लक से ये नए साल में हमें बहुत ज़रूरी ये करना है कि बड़ी एहतियात से खुदावंद के लिए इसको इस्तेमाल करें। एक दिन अभी जो नई जनरेशन है उसको शायद इस बात का नहीं पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो आप घर में जाके उसको बता सकते हैं। पुराने वक्त में जब लोग सफ़र करते थे तो पैदल करते थे, तो उनके पास, आजकल तो बैकपैक होते हैं, तो उनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने कपड़े रखे होते थे, तो ऐसे चलते होते थे जी, ठीक है। और जब वो उन्होंने जैसे एक शहर में जाना है तो वहाँ रास्ते में कोई अंधेरा हो गया तो वह नहीं जाते थे, कहते थे चलो ये रात यहीं काट लेते हैं। तो एक शख्स गांव के बाहर बैठा था, एक बूढ़ी औरत आई, उसने उसको कहा कि बेटा इत्थे क्यों बैठा है? कहने लगा माँ जी अगले पिंड जाना है, रात हो गई है, सोचना कोई घर लै जाए मैनू। उसने कहा चल बेटा मेरे साथ। वो गया। वो औरत जो थी उसका बेटा और वो दोनों इकट्ठे रहते थे, गरीब थे पर दिल वाले थे। और जब वो वहाँ गए तो उसको रोटी दी गई, उसको बेड दिया गया, और जो बेड था वो उनके पास, माँ बेटे के पास एक ही था। उन्होंने उसको बेड दिया, रोटी खिलाई, सब कुछ किया। और गांव में ऐसे होता था, खाने के बाद ये बातें शुरू होती थी। ये पुरानी बातें हैं, ये आपको नहीं शायद पता होगा। तो बातें करने लगे तो वो आदमी बात करने लगा, कहता माँ जी जब से मैं आया हूँ इस घर में मुझे एक बात की बड़ी फिक्र है, मैं सोच रहा हूँ ये बात करूँ आपसे या ना करूँ। मैंने कहा नहीं पुत्र कर। उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि आज रात अगर आपका ये बेटा मर जाए तो दरवाज़ा छोटा है, बेड बड़ा है, कैसे बाहर जाएगा?
زبان کو کیا کیا؟ غلط استعمال کیا نا. اس عورت نے اس آدمی کو جوتیوں سے مار مار کے باہر نکال دیا. رات کے جب وہ باہر گیا تو اپنے منہ پہ ہی ایسے ایسے مار رہا تھا. ایک آدمی نے پوچھا کہ یار کیا ہوا تجھے، تو بڑا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں پاگل نہیں ہوں، اسی کا سارا قصور ہے. بڑی اچھی طرح سے انہوں نے مجھے انٹرٹینمنٹ کیا، اچھی طرح سے کھانا کھلایا، بیڈ دیا، پر اس نے جب غلط استعمال کیا تو یہ زبان نے مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا. زبان یہ کرتی ہے. میں آپ کو بائبل میں لکھا ہے نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا ذکر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. امثال میں لکھا ہے. تو نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو توڑتی کیسے ہے، آج ہم یہ بات بھی سیکھیں گے. امثال 25:15 میں یہ لکھا ہوا ہے. اور میں بھائی جی آپ دوسری سلاطین اس کا پہلا باب نکال کے رکھیں. دوسری سلاطین اس کا پہلا باب. یہاں میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری لمبی ہو جائے گی، پر میں آپ اس کو سیکھ جائیں گے کہ میں نے پراورب 25:15 نیتی وچن 15 نکال لیے. اب دوسری سلاطین کی پہلی 1 یا 2 آیت پڑھے. اور اخیاب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اخزیا اس جلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. بس جی. اب آگے کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 13 ورس میں، ابھی نہیں. یہ جو بات اس کا جو باپ تھا وہ یہودی تھا، ماں اس کی غیر قوم سے تھی، اور یہ ایول اسپرٹ اس کے اوپر کام کرتی تھی. اس اخی نے جو آرڈر ملتا تھا اس کی بیوی سے تو جیزبل، تو وہی نبیوں کو ستاتی مارتی. اب انہوں نے جب حکومت وہ مر گئے تو وہ بادشاہ مر گیا، تو اس کی جگہ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا بادشاہ بنا. جب وہ بادشاہ بنا تو جیسے ابھی ہم نے بھائی نے پڑھا ہے، بھائی ولسن نے، کہ وہ کھڑکی سے گرا اور بیڈ پہ چلا گیا اور بیمار ہو گیا. اس نے بیماری کی حالت میں اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ بال کے پاس اور ان سے پتہ کر کے آؤ کہ میں جو بیمار ہوا ہوں مر جاؤں گا یا بچ جاؤں گا. ابھی وہ جا رہے تھے تشبی ایلیا ان کو خدا نے کہا اس سے جا کے ان سے مل جو لوگ ابھی جا رہے ہیں. وہ آیا، اس نے کہا میری بات سنو، بادشاہ سے کہہ دو کہ کیا اسرائیل میں کوئی نبی نہیں؟ کیا اسرائیل میں آپ نے بال کو پوچھنے کے لیے بھیجا؟ اس کو بات بتا دو کہ اب تو جو بستر پہ پڑا ہے تو مر جائے گا. وہ واپس آ گئے. واپس آئے، بادشاہ نے پوچھا واپس آ گئے؟ اس نے کہا ایک بندہ، ایک شخص ملا تھا، اس نے ہمیں کہا کہ اس کو جا کے بتا دو کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مر جائے گا. اس نے کہا اس کا حلیہ کیا تھا اس شخص کا؟ اس نے کہا وہ بڑے بڑے بالوں والا تھا، اس کے کمر پہ کمر بند باندھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو ایلیا تشبیہ ہی ہو سکتا ہے، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ. اس نے 50 آدمی بھیجے، ایک سردار بھیجا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بڑی اتھارٹی سے کوئی آرڈر ملتا ہے تو جن کو ملتا ہے وہ بڑے پرائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے روڈ ہو کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بادشاہ نے 50 آدمی بھیجے سردار کے ساتھ. وہ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آئے خدا کے بندے نیچے اتر، بادشاہ نے بلایا ہے. تو ایلیا نے کہا اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو آ گئے تو تم کو بسم کر دیں. وہ 50 اور سردار بسم ہوئے اور چلے گئے. بادشاہ کو پتہ چلا کہ 50 کے 50 لوگ اور سردار مر گیا ہے. اس نے اور 50 بھیجے. انہوں نے بھی اسی ٹون سے، اسی لہجے سے ایلیا سے بات کی. ایلیا نے کہا اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو یہ سب ختم ہو جائے. تو آ گئے اور بسم ہو جائیں. تو بسم ہو گئے. اب تیسرے شخص کو اس بادشاہ نے بھیجا. اس نے 2 سال اسرائیل پہ حکومت کی تھی، زیادہ حکومت نہیں کی. اب تیسرے شخص کو جب تیسرے سردار کو
50 समेत भेजा। तो उसको हम पढ़ेंगे भाई 13वीं आयत से। पहला चैप्टर दूसरी सलातीन पहला बाब उसकी 13। सेकंड किंग फर्स्ट चैप्टर वर्स 13। दूसरा राजा। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार का गौर से सुनना इसको। अभी ये नरम जुबान की बात आने लगी है। पहले उन्होंने जुबान को गलत इस्तेमाल किया था। अब ये जो आदमी है जो तीसरे 50 है, इनके सरदार ने अभी क्या किया है, जरा पढ़ना जी आराम से। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा, और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, आए मर्द खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम है तेरी निगाह में गिरा बहा हूँ। देख, आसमान से आग नाज़िल हुई और 50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नज़र में गिरा बहा हो। तब खुदा के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे आ जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदा मुझे फरमाता है कि तूने जो अकरूम के देवता बाल ज़बूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, हालेलुया, बल्कि जरूर ही मरेगा। आमीन। सो वो खुदा उनके कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था इसलिए शाह यहूदा योराम बिन यहोशफत के दूसरे साल से यहोराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। आमीन। Praise the Lord. बात समझ गए आप? कौन नहीं समझा? बात का फायदा जुबान दो लोगों ने, दो सरदारों ने 50 समेत गलत जुबान बोलने से वो सारे भस्म हो गए। अब ये तीसरा शख्स बड़ा अक्लमंद था, मैं सोचता हूं। इसने बात एलिया के सामने बड़ी मिन्नत करके नीचे जो ऊपर गया, वहां पे झुका, उससे बात की और उनकी जानें क्या हो गई। बच गई। और अपनी जुबान से हम क्या अपनी जान को बचा भी सकते हैं और हलाक भी करवा सकते हैं। जुबान एक जहर कातिल की तरह है। जुबान को यहूदी जो लोग थे वो तलवार भी कहते थे और तीर भी कहते थे। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको हवाला दूंगा। साम 64 है, उसकी तीसरी आयत में है शायद। वहां पे वो यहूदी लोग जो थे वो तलवार क्यों कहते थे और तीर क्यों कहते थे? साम 64 में यहूदी लोग जो थे वो जुबान को तलवार इसलिए कहते थे क्योंकि तलवार जो है वो, समझिए मेरे पास ये तलवार है, मैं इसको भी मार सकता हूं, इसको भी मार सकता हूं, इसको भी मार सकता हूं। ये तलवार का काम है, ठीक है जी। लेकिन तीर जो है सिर्फ एक बंदे को मारेगा। वो नहीं, वो तीर जो है वो बड़ी दूर तक मार करता है। यहां से मैं तीर चला दूं किसी के घर में तो वो घायल हो जाएंगे। आजकल तो बड़ी आसानी है तीर चलाने के लिए, ये मोबाइल है, यहां से फोन करो, किसी के घर में बात कर दो तो तीर जो चल जाएगा। दूसरे मोहल्ले में, दूसरे शहर में, बल्कि दूसरे मुल्क में भी आप ये तीर चला के तो इसका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जुबान खुदा के लिए इस्तेमाल हो तो जिंदगियां निजात पा जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में प्रोवर्ब उसका इंसाल की किताब और उसका 18वां बाप है, 18 चैप्टर वर्स 21। इंसाल की किताब नीति वचन 18 बाप और उसकी 31 आयत में 21 आयत। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। हालेलुया। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं।
और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर ये जुबान घरों में आग लगा सकती है तो ये जुबान यहाँ से दूसरे मुल्कों में खुदा का निजात का काम भी कर सकती है। Praise the Lord, praise the Lord. सॉरी। है पानी। काफी दिनों से खांसी थी, पर खुदा ने जब यहाँ आया तो खांसी ठीक हो गई थी, पर फिर भी आज हम अपने आप को देखें कि मैं इस जुबान से क्या कर रहा हूं। खुदा ने आपको नया साल दिया है, नई जिंदगी दी है, आपके बच्चों को दी है, हमें एक नया अच्छा मुल्क दिया हुआ है जहां हम इतनी आज़ादी से खुदा के नाम को ले सकते हैं, खुदा के काम कर सकते हैं। अगर ये ज़ुबान आज भी खामोश रही तो ये ज़ुबान खुदा ने आपसे पूछना है कि मैंने आपको इतनी अच्छी सेहत दी थी, मैंने आपको इतना अच्छा मुल्क दिया था, और आज मेरे लिए ये ज़ुबान खुल क्यों नहीं रही है। जब हम उसके लिए इस ज़ुबान को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के खत के 11वें बाब में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना ज़रूर है। हमने 6 ज़बूर की अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि मौत के बाद तेरी याद नहीं और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी कर। आज ये ज़िंदगी है, आज ये नया साल है, आज इस नए साल में हमें खुदा के लिए इस ज़ुबान को इस्तेमाल करना है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि ज़रूरी है गोते दा बपतिस्मा लेना। मैं उनको एक दिन मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा बात सुन, ये जो हमारी बहनें हैं यहाँ बैठी हुई इस बात को ज़रूर समझेंगी कि जब मुझे भी, मैं जानता हूँ मुझे भी मेरी बहनें कपड़ा दुपट्टा रंगने के लिए देती थी ना, तो वो जब कपड़ा रंगा जाता था तो वो रंगने वाला उसके ऊपर ऐसे चींटे नहीं डालता था, कपड़ा नहीं रंगा गया। कपड़ा कैसे रंगा जाता था? पूरा डुबोया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा में नए होने के लिए हमें डुबकी लगानी जरूर पड़ती है। हम अपने आप को खुदा में दफन करते हैं और उसमें फिर जीते हैं, फिर हमें नई अक्ल आ जाती है, फिर हमारी जबान कंट्रोल हो जाती है, हमारा बदन कंट्रोल हो जाता है, और फिर हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज के बाद अपने आप को आपने सवाल करना है अपने आप से कि ये जो नया साल है, मैंने जैसे शुरू में बताया कि नया साल उनके लिए है जिन्होंने अपनी पुरानी इंसानियत को दफन किया है पुराने साल में, और इस नए साल में मसीह में नई जिंदगी पाई, और ईमान के साथ अगले साल के हर एक दिन में उसमें हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेरे लिए एक नया साल होगा। लेकिन अगर मैंने अपनी कोई भी चीज, कोई भी आदत चेंज नहीं की, खुदा के सुपुर्द नहीं की, नया साल नहीं है, मैं पुराने का पुराना ही। तो इसलिए जैसा आपने पढ़ा, तलवार भी है, तीर भी है। जैसे तीर जुबान का चले, मैंने ये अभी इस बात से मैं आपको बताऊंगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा उनका कलाम 2 धारी तलवार है। क्या करता है? बंद बंद निकल जाता है और दिल के ख्यालों को खोल देता है। अब ये तलवार कैसे है? बहुत दिनों तक मैं ये समझता था, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं। एक दिन मैंने बरकत टीवी पे एक शख्स था, एक पादरी पास्टर था, उसने अपनी गवाही जब बताई तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी की सारी गंदी बातें उस
बरकत टीवी पे बता रहा था, तो कह रहा था कि मैं कैसा था। अब मेरा मतलब यह है कि अगर कोई शख्स यहाँ आके अपनी पुरानी ज़िंदगी की बातें बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आज उस पुरानी ज़िंदगी में आप देखो। उसका मतलब ये है कि जो लोग आज भी उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए खुदावंद में एक उम्मीद बनती है कि अगर ये शख्स जो है ये ऐसे हो सकता है, ठीक हो सकता है, खुदा का खादम बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। लेकिन उसके लिए खुदावंद के ख्यालात को, जो हमने शुरू में पढ़ा कि उसके भलाई के ख्यालात हैं, आपके घर में कुछ डिलीवरी खुदा के बरक़ात की नहीं आनी, उसको डिस्कवर करना पड़ता है। निजात हमें फ्री मिली है क्योंकि इतनी महंगी थी कि खुदा ने निजात ही फ्री कर दी, कहा कि कोई इस निजात को पा ही नहीं सकता, चलो मैं फ्री कर दूं। पर उसके बाद हमने अगर खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो वो जो निजात हमने पाई है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अब तलवार की बात कर रहा था तो मैं बहुत दिनों तक ये सोचता था, ये खुदा का कलाम या दोधारी तलवार है, तो आपको पता ना चाकू छुरी या तलवार जो होती है एक साइड से शार्प होती है, एक साइड से नहीं होती। तो मैं समझता था ये दोनों साइड से शार्प है बहुत दिनों तक। फिर मैंने सोचता रहा, मैं सोचता रहता हूँ, फिर मुझे पता चला खुदा ने कहा ये दो, जैसे तू सोचता है ये दोधारी तलवार ऐसे नहीं है। आज का ये मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली तो मैं इसलिए आपको समझाने की। ये दोधारी तलवार इसलिए है कि जब इस तलवार से जब शैतान मुझ पर हमला करेगा तो मैं उससे इस तलवार से उसका जवाब दूंगा, और जब मैंने किसी को कुछ बात बतानी है इसकी तो मैंने भी इसी से करनी है, अपनी सेफ्टी भी इसी से करनी है, दूसरे पे वार भी इसी से करना है। तो ये दोधारी तलवार मुझे खुदा ने सिखाई थी, पहले मैं नहीं समझा था। तो आज हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि अभी भी कि खुदावंद ने हमें सिखाया, हमें बताया, और हम मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में। आप प्रवर्ब को, मिसाल को पढ़ेंगे तो ज़ुबान के तरफ से और भी बेशुमार आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। अगर आज प्लीज़ मैंने किसी को अगर ठोकर पहुंचाई हो इस कलाम से तो मुझे पहले माफ़ कर देना कि मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया। खुदा का कलाम जो है वही सब कुछ करता है, वही छांटता है, तराशता है और गढ़ता है। अगर हम कलाम के तराजू में जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कम निकलता हूं। इसलिए आज अपनी जुबान को किस तरह से नरम बोलना है, अपनी निजात के काम को किस तरह से पूरा करना है, हमारी जो करप्ट अक्ल है उसको किस तरह से हमने खुदा की अक्ल में कन्वर्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आपको इस बात के लिए आप अपने आप को देखना है, बस अपने आप से सवाल करना है। और सवाल ये करना है, खुदावंद बेशुमार लोग आज इस दुनिया में नहीं, बहुत से अच्छे लोग इस जहान से कूच कर गए, और आज जो तूने मुझे ये नया साल दिया है और मुझे ये बदन दिया है, और बदन में जो मेरी ज़ुबान है, ये मेरे अपने लिए, दूसरों के लिए क्या बरकत का बायस बनती है, या मैं दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनता हूँ। जो ज़ुबान गलत इस्तेमाल करते हैं लोग उनसे दोस्ती भी कम करते हैं, कहते हैं यार बड़बोला जा बंदा है, ना की गल करनी, ठीक है। पर अगर यही ज़ुबान जैसा हमने पढ़ा है मिसाल की किताब के 18वें बाब की 21 आयत में कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। अगर हम इसी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे कभी निजात नहीं पा सकते, दूसरों की निजात का हम सबब नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जब देखना है कि मेरी बोलचाल कैसी है, मेरा किरदार कैसा है,
तो वो कभी खुदा के पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसी ज़ुबान को हम खुदावंद की मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसकी निजात के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इनकर्ज करेंगे, लोग जब अभी हमने पढ़ा लोग जब झूठी बात करें तो खुदावंद जो है वो उन झूठी बातों को जानता है। आप जब भी कभी इस ज़ुबान को इस्तेमाल करें तो खुदावंद के लिए करें, किसी की जजमेंट ना करें। हलीम और फुरतन बने, अपने आप को बदलें। कोई किसी को बदल नहीं सकता। मैं अपनी बीवी को नहीं बदल सकता, बीवी मुझे नहीं बदल सकती, मैं किसी बच्चों को नहीं बदल सकता। मैं एक काम ज़रूर कर सकता हूँ कि जो लोग मेरे साथ रहते हैं मैं उनके लिए दुआ करूँ। खुदावंद अपने वक्त पर काम करेगा और वो निजात का काम वही करने वाला है। उसी से हमें निजात मिलती है, उसी से हमें सारा कुछ मिलता है, उसी ने हमें सब कुछ दिया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं और शुक्रगुजारी करते हुए फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो, क्योंकि उसका भला, क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी रहमत पुश्त दर पुश्त रहती है। आखिर में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब मैंने तुम्हार की बात की तो प्लीज़ घर जाके उस तुम्हार के ऊपर पहला ज़बूर लिखें। उसकी 6 वर्सेस हैं, 6 आयत हैं। पहला ज़बूर उसकी 6 आयत हैं, तो उसकी 3 आयत जो हैं वो जो हैं फ़र्क हैं और बाकी जो हैं वो शरीरों के लिए है। वहाँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। अगर हम खुदावंद की इन सारी बातों को जानेंगे, जो दरख्त होता है पानी की नदियों के पास लगाया जाता है उसका एक पत्ता भी नहीं मर जाता, लेकिन जब हम सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फूल भी कमला जाता है और खुदावंद की हवा उस पर चलती है। खुदावंद के कलाम में 40 की 5 आयत में लिखा है कि दुनिया की सारी कौमें एक डोल के बूंद की मानद हैं। अगर आपको डोल का नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ। आगे लिखा है, पर शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। अगर आप सादक हैं तो खुदावंद आपकी राहें जानता है, कोई जाने या ना जाने। बड़ी दिलेरी की बात है कि मैं अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ, खुदावंद कोई जाने या ना जाने, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तू मुझे जानता है। तो खुदावंद को जानने के लिए उस तुमार के ऊपर आज जो नए साल का आपको तुमार खुदावंद ने दिया है और उसको आप खोलें, उसको पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें और देखें कि मैं पानी की नदियों के पास लगाया गया हूँ, अपनी ज़ुबान को किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, मुझ में वो अक्ल जो करप्ट अक्ल थी वो है या मसीह की अक्ल है। अभी हमने पढ़ा है कि हम में क्या है, तो हम तो खुदा के इतने लोग हैं, शेर बब्बर शेर के बच्चे हैं, तो ऐसे ऐसे करके क्यों हम चलते हैं और ऐसे ऐसे क्यों करके हम चर्च में आते हैं डर डर के, क्यों? बब्बर शेर के बच्चे हो। तो जब आप बब्बर शेर के बच्चे हो तो दिलेरी के साथ खुदा में आए, खुदा में खिदमत करें, अपनी ज़ुबान को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अपने होंठों को मकर की बात से और कहने से बाज रखें, दूसरों के लिए तरक्की का बायस बने। ये खुदा ने आपको आज नया साल दिया है। ये ना हो कि ये साल का आखिर हो और फिर हम खुदावंद के सामने जाए, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, जैसा मैंने पिछले साल गुजारा था अब ये साल भी मैं वैसे ही गुजार रहा हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है
खुदावंद के लोगों, खुदावंद की बेटे बेटियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, ये आज का कलाम मेरे लिए था, आपके लिए भी था, ताकि हम खुदावंद में बड़े तरक्की करें। उसकी मर्जी यही है। हमने पढ़ा कि मेरे ख्याल भलाई के ख्याल हैं, बुराई के नहीं हैं। तो जब भलाई के ख्याल खुदावंद के है तो हमें खुदावंद की ताबेदारी, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी राहों को देखना है, उसकी मर्जी को जानना है, तब फिर जाकर उसके भलाई के ख्यालात जो है वो हमारे लिए पूरे होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबकी, खुदावंद के लिए तालियां बजाएं तो जोर से बजाया करें। मेरे लिए, मैं कौन हूं मेरे लिए जो आप तालियां बजा रहे हैं? जोर से ताली बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा के खादम ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और हमने सीखा इसमें कि हमें अपनी ज़बान को कैसे इस्तेमाल करना है, ना किसी का दिल दुखाना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आखिर में हम गीत गाएंगे। आखिर में हम ज़बूर गाएंगे, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा। इसके साथ आप अपने हदिये नजराने खुदावंद की खिदमत में पेश कर सकते हैं। आखिर में खुदा के खादम दुआ करेंगे, बीमारों के लिए दुआ की जाएगी और खुदा के खादम कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा सब मिलके दुआ करेंगे
अगर कोई हमारे में चर्च में कोई बीमार है, कोई ऑनलाइन बीमार है या भूत प्रेत से बंधा है, प्लीज अपने सिर पे हाथ रखें। आप अपने हाथ में पानी पकड़ सकते हैं। जब हम सारे खादी मिलकर दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपके पानी को छुएंगे। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई खाना में प्रॉब्लम है, प्लीज अपने आप डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे, आपके डॉक्यूमेंट को छुएंगे। हर एक तरह का जादू टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रतापी परमेश्वर, एक बारी फिर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम में, अपने वायदों में वास करने वाले परमेश्वर, जितनों ने विश्वास से, ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है, अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, अपने डॉक्यूमेंट पे हाथ रखा है, पानी पे हाथ रखा है, हर एक तरह के बंधन, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का जादू टूना हम सारे मिल के हुक्म देते हैं। हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की नेगेटिविटी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हर एक तरह का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हर एक तरह का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और चंगाई सिर से लेकर पैर तक मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जो आज कलाम सुनाया गया उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये कलाम यही तक नहीं, हमारे खानदानों में, परिवारों में आगे तक काम करे। खुदावंद जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको बरकत देना। चर्च के सारे ईमानदारों को, सारे खादिमों को, सारे परिवारों को तेरे सम्मुख रखते हैं। हमारी लिविंग अनलिविंग थिंग तेरे सामने रखते हैं। तेरे स्वर्गदूतों का वास हमेशा हर एक पे बना रहे प्रभु। वेदर दे आर फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक तरफ से प्रभु, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रभु अपने पाक फरिश्तों के जरिए बांध के रखना। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रिफाकत और शराकत सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। चर्च अनाउंसमेंट है। एवरी संडे चर्च 11:30 बजे लगता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि टाइम पर आए ताकि हम खुदावंद की इबादत को वक्त पर शुरू कर सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।